Hey everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, my name is Harshita Vaid. I am an ex hospitality person, and today I bring the topic of Ketu Mahadasha. So, the last video I made, it was just yesterday only. I made this video and I was just talking about the people who already have this experience of Ketu Mahadasha, who already are struggling in Ketu Mahadasha, who already have this Mahadasha running, right? Why? Because ultimately I am someone whose Ketu Mahadasha is about to start in next 72 hours to be exact. And I actually want to be mentally prepared for it. I'm already struggling in the shadow time period. I did leave my job. I got into studying astrology, spirituality, horoscope and things like that. I learned tarot reading, and then I also learned prompt engineering for AI. Uh, Today I want to talk about Ketu Mahadasha in a way that I am experiencing it. How? Because generally Ketu is very much like misunderstood, right? People believe that it is just the worst period of time for your life because it detaches you from everything, right? But in my personal opinion, and as per the information that I've gathered on, you know, our trustworthy Google and YouTube, uh, rumor has it that it cuts, detaches every emotional and karmic tangles to bring you towards your higher self, right? So yes, I actually do have some notes. I might be reading them soon. Oopsies. But for now, what I am personally experiencing is something that actually is very real. Not scary real, but real real. I was anyways an outcast back in days. I never really had much friends, but I have a lot of acquaintances. And at this point, in this moment of time, I get a lot of calls or messages, but I just don't feel like speaking to anyone. So yes, Ketu does changes your social environment, right? Your social circles start decreasing. Um, this is something that is coming from my experience, and then yes, there are some things that you mentally check out from, either your relationship, or just job or relationship or social culture, or even just simple connections. Like, you don't really feel like entertaining all of those things. Whosoever comes in to take or seek help, you're ready to help them, but ultimately if you have to reach out to someone, you simply don't feel like doing it. And this is something that is happening with me for sure. So when I was reading, studying, and making these notes, I figured out two things. There are two planets. Like, number one, there's Ketu. Number two, there's Rahu. So Rahu is basically your birth planet. Birth planet, as in that actually showcases your unfulfilled desires. Like, if you don't have a car, you want a car. You want to buy a home. You want to buy whatever you don't have. Okay, so it's basically it represents something that you desire from inside, where Ketu detaches you from these things, right? It does not detach you from yourself, but it does detach you from the loud chaos noise around you, right? So point number one, Ketu does cut things down, but it is for your own good, because it cut down those things that actually don't serve a purpose in your life anymore, for your soul specifically. Because going on Ketu's path is basically listening to your soul. If you leave job because you have been grown tired of it, if you leave people because you have grown tired of them, see, it's not necessary कि हमेशा कोई चीज़ अच्छी या बुरी में ही नापी तो ली जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ अच्छी नहीं होती, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. केतु को दुनिया बोलती है गलत है, गलत है, गलत है, ख़राब टाइम पीरियड है, परेशान हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन क्यों होता है उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता. आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है. बेसिकली इस टाइम पीरियड में ना आप वो चीज़ें छोड़ते हो जो आपको सर्व नहीं करती हैं. छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप बैठ जाते हो, एक माइक्रो एनालिसिस करने हर चीज़ को लगते हो. किसी ने कुछ बोल दिया, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट सेम पर्टिकुलर पॉइंट द होल नाइट. इट आस्क यू टू
cut that down from your life. Like, it is not something that's gonna serve you, right? It's just you're overthinking again and again, and then your body is struggling because of it, your mind is struggling because of it, you're crying the whole night, you cannot sleep. You're micro analyzing that particular situation, which has to be cut down, which does not serve a purpose for you, right? So ultimately, this is what K2 does. K2 cuts those things that don't serve a purpose for your higher self. Why I say higher self? Ketu is a time period of learning. Not necessarily something divine, I would say, but something that actually teaches you to pave a path for yourself, right? आप कोई एक चीज़ बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो. फॉर मी, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, मैं बहुत लंबे टाइम से होटल इंडस्ट्री में रही और मैंने सडनली छोड़ दिया. मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ. ठीक है, तो उसने मेरे को एक रिलीफ दिया है ऑलरेडी, राइट? मतलब बिकॉज मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था जॉब पे जाना कि मेरे को मतलब सुबह उठकर सोचने के लिए भी कि मेरे को उठ के जाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, मेट्रो लेनी पड़ेगी, ड्यूटी जाना पड़ेगा, वहाँ जाके 50 चीज़ें देखनी पड़ेंगी. मतलब मैं वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाह रही हूँ, एंड लेट अलोन वहाँ पे एक्चुअली जाना. मतलब एक दो बार तो ऐसा कि मैं आधे रास्ते से वापस आ गई कि मुझे नहीं जाना. तो अल्टीमेटली क्या है कि वो मेरी सोल मुझे अंदर से बोलती रही कि भाई दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू, राइट? बिकॉज केतु आपको उन चीज़ों से डिटैच करता है जिससे आप ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हो. आप उससे ऑलरेडी थक चुके हो, पक चुके हो. आपको वो चीज़ नहीं करनी है, मगर आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़े जस्ट बिकॉज पेट पालना है, पैसा कमाना है, कल को परिवार को देना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है. वो सब क्या है? वो सब एक डिज़ायर्स हैं. कल को हम जब इस धरती से चले जाएंगे, हम वो सब चीज़ें साथ लेकर नहीं जाएंगे. ना पैसा हमारा साथ जाएगा, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ भी नहीं. आप जैसे आए हो वैसे जाओगे, अकेले आए हो अकेले जाओगे. तन पे एक कपड़ा तक नहीं होता है जब आप यहाँ से जाते हो. तो आप किस चीज़ के लिए इतना कमा रहे हो? हाँ ठीक है, आपको लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए, मानते हैं, लेकिन लाइफ जीने के लिए बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ हैं. जैसे हमने बचपन में पढ़ा स्कूल में, रोटी कपड़ा मकान. वी हैव अ रूफ ओवर योर हेड, वी शुड हैव क्लोथ्स टू वेयर, एंड वी शुड हैव फूड टू कंज्यूम. दैट इज़ समथिंग आवर बॉडी नीड्स टू सर्वाइव. मगर हमारे डिज़ायर्स में हम इतना पड़ जाते हैं कि हम और आगे घोड़े की तरह भागने शुरू हो जाते हैं रेस में. कैसे? मेरे को ये कमाना है, भाई उसकी गाड़ी देख यार कितनी सही गाड़ी ली है उसने, मुझे वो गाड़ी चाहिए, या ऐसी कोई गाड़ी चाहिए, इससे बढ़िया गाड़ी चाहिए. मैं और I'm gonna start grinding over it. लाइक मैं उसको और ग्राइंड करती रहूँगी, खुद को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, जस्ट बिकॉज मेरे को पैसा कमाना है. मेरे को वो चीज़ चाहिए जो कल को किसके एक ढंग के भाव से भी नहीं बिकनी. मतलब अगर आप गाड़ी लेते हो, आप कुछ साल के लिए चलाओ, आपको सेम पैसा भी नहीं मिलता है, वो आधे रेट पे निकलती है अगर आपको सेकेंड हैंड कहीं बेचनी है तो. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा? आपकी बॉडी ने सफ़र किया. आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाने के लिए, आपने मेंटली इमोशनली खुद को एग्जॉस्ट किया कि नहीं मेरे को जाना चाहिए. ठीक है, अब उससे हुआ क्या? अल्टीमेटली उससे हुआ ये कि आपने घिस तो लिया खुद को. कल को जब चलाने की बारी आई तो आप चला भी नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं है आपके पास. आपने सोचा कि यार चल गाड़ी लूँगा, मैं घूमने चला जाऊँगा, मैं पूरी दुनिया घूम के आऊँगा और मस्ती से जाऊँगा, अपने कंफर्ट में जाऊँगा. ठीक है, मगर अल्टीमेटली हुआ क्या? आपके पास टाइम ही नहीं है. आपको ये भी लेना है, आपको वो भी लेना है, आपको पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है, बिजनेस करना मतलब 24/7 मेरे को लगे रहना है उसके अंदर. तो मतलब अल्टीमेटली क्या है? आप खुद को घिस रहे हो. आपने जो ख्वाब देखे वो तो देख लिए, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन जब टाइम आया तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे. क्यों? तो मतलब उन चीज़ों के पीछे भागना ही क्यों जो आपकी नेसेसिटी ना हो, या सिर्फ उतना करो जिससे आपकी नेसेसिटी पूरी हो. आपको घूमने जाना है तो ट्रेन अवेलेबल है, बस अवेलेबल है. अगर आप गाड़ी से अपनी जाते हो तो उसका पेट्रोल ही आपका बराबर पड़ जाएगा कॉस्ट. फिर उसके बाद आपको ड्राइव भी करना है, आपको एग्जॉस्ट भी होना है, आपको फोकस भी करना है, आपको आगे भी देखना है कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही मेरे को ठोकने के लिए, है ना? अब आपके पास जब आपके पास ऑलरेडी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, मेट्रो है, कार नहीं तो कैब्स हैं आज की डेट में. अगर आप अपनी कार नहीं लेके जाती, कैब्स हैं. ठीक है, आपके पास ट्रेन्स हैं, आपके पास बसेस हैं ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, तो
क्यों उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना या उस चीज़ के लिए खुद को इतना ग्राइंड करना कि कल को आप खड़े ही ना हो पाओ, वो चीज़ कर ही ना पाओ जो आप करना चाह रहे हो। ये एक चीज़ मैंने सीखी। दूसरी चीज़ ये आती है कि तू यू नो कहते हैं कि मोक्ष की तरफ लेके जाता है आपको। अब मोक्ष की डेफिनेशन क्या है? अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, मगर आप वो चीज़ मतलब नहीं करना चाह रहे, आपकी हिम्मत नहीं हो रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, मगर आप उसको छोड़ भी नहीं रहे हो। क्यों? मजबूरी है। मजबूरी कहाँ है? यहाँ पे है। कमाना है, नौकरी नहीं छोड़ सकता, परिवार देखना है, परिवार को पालना है। अब जिस दिन आपने ये चीज़ छोड़ दी कि यार छोड़ देखी जाएगी, अब नहीं हो रहा मेरे बस की, मैं वो करूँगा जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ तो मैं घूमूंगा, कोई बात नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो छोड़ दिया ऊपर वाले पे कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, ऊपर वाला देगा, ठीक है, नहीं तो अभी फ़िलहाल तो मैं इतना ग्राइंड नहीं कर सकता, मुझे ब्रेक चाहिए। आपने वो ब्रेक ले लिया, दैट इज़ अ मोक्ष। कि आपको मेंटली जो वो आप खुद को ग्राइंड करे जा रहे हो, खुद को ऐसे जकड़ के रखा हुआ है दिमाग को अपने, आप उस चीज़ से छूट रहे हो। दैट इज़ मोक्ष, दैट इज़ लिबरेशन। केतु यही आपको सिखाता है कि आपको लिबरेशन की तरफ कैसे जाना है। तो बेसिकली जो चीज़ आपके सोल को नहीं भाती वो उन चीज़ों को काट देता है, ये होता है। ये मैंने सीख लिया, समझ लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि केतु हर एक की लाइफ में सेम काम करे, क्योंकि केतु नक्षत्र में बैठता है, मतलब वो जिस हाउस में होता है वो उस पर्टिकुलर हाउस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई बोलो कि मैं उसको फिगर आउट कैसे करूं कि कौन सा पार्ट मेरी लाइफ का कौन सा पार्ट जो है उससे अफेक्ट होने वाला है, सो इसका कोई स्टैंडर्ड सेट रूल नहीं है। आपको पहले देखना पड़ेगा किस हाउस में बैठा है, राइट। अगर हम एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखते हैं अपना, तो उसमें एक बॉक्स बना के देयर इज अ लॉट ऑफ लाइंस एंड देन एवरी सिंगल पार्टीशन और एवरी सिंगल बॉक्स इज अ हाउस, राइट। सो उसमें से कौन से हाउस में 12 अगर हमारे घर होते हैं हमारे एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो कौन से घर में बैठा है केतु। अब उस घर का मालिक कौन है, यानी उस घर को, उस स्पेस को कौन सा प्लैनेट या क्या चीज़ उसको मतलब लाइक उससे जुड़ी हुई क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो इसके 9 नक्षत्र हैं अगर मैं कहूँ तो, एक सन में, एक मून में, मंगल में, बुध में, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु, राइट। अब मान लो कि आपके वो सन हाउस में बैठा है, सन के हाउस में अगर वो बैठा है तो सन का हाउस जो है वो आपको ऊपर से लोगों के लिए बहुत ईगोइस्टिक लगा है, मतलब पीपल विल थिंक दैट यू आर वेरी ईगोइस्टिक, but ultimately you are burning yourself to provide to others, not necessarily financially or materialistic, but you're burning yourself inside, you're burning your own thinking, your emotions to actually give it to others, right। आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, लेकिन आपको पता है कि मुझे ये करना भी है, नॉट इन अ वे कि आप मजबूर हो उसको करने के लिए, बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इट, your soul wants you to do it. So if your soul tells you nahi, you should be working with people or you should work for people, ketu will push you towards that side, right? So I actually have these notes, as I said earlier. I'm just gonna read a couple of points from this. So the presence of ketu in different houses also makes a lot of difference. It is always much better to sync with ketu rather than fighting it. Why? Because 2 तरीकों से आपको केतु बात मनवाएगा अपनी, या तो धक्का पेल करके, या आप उसको समझ जाओ और उसके रास्ते पे चल जाओ, एक प्यार से और एक गुस्से से। गुस्सा करके लेके जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, स्ट्रगल होगा। अगर आप प्यार से उसके साथ अलाइन होगे, उसको समझोगे, सिंक करोगे, उसके हिसाब से चलना शुरू करोगे, अपनी आत्मा की आवाज़, आत्मिक आवाज़ को सुनना शुरू करोगे, बहुत स्मूथली निकल जाएगा। दैट विल टर्न आउट टू द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ। वाई? नाउ the answer to the question why is because if you actually go with the flow, you don't feel exhausted, right? Rather than fighting the current, you're supposed to go with the flow, so you actually keep moving ahead. और इस दौरान अगर आपको केतु कह रहा है कि आपको कोई चीज़ सीखनी है, तो उसको ऐसा सीखो, वो नॉलेज आपकी लाइफ में आगे तक चले जाएगा आपके साथ। मतलब हम कहते हैं ना, आपका रोटी, घर, कपड़ा, मकान सब जा सकता है, मगर आपका ज्ञान नहीं जा सकता। उस ज्ञान को लेने के लिए वो टाइम है।
अगर इस दौरान आप एक्चुअली केतु को एक्सेप्ट कर लेते हो, या वो आपको क्या कह रहा है, या केतु भी नहीं, आप अपनी आत्मिक आवाज़ को सुन लेते हो, आपकी आत्मा आपको क्या करने को कह रही है, या आप अगर इस पृथ्वी पे जन्म भी लिए हो तो क्यों लिए हो। आपका हम लोग का ना बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरा इस धरती पे जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है, खाली नौकरियां करने के लिए तो नहीं हुआ, मेरा कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा। पर्पस कुछ भी हो सकता है, शायद आपको दूसरों के लिए जीना है, शायद आपको खुद के लिए जीना है, शायद आपको मोक्ष के रास्ते जाना है, शायद आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना है, राइट। अगर मैं अपने केस सिनेरियो की बात करूँ तो दिस इज अ लर्निंग फॉर मी टू डिटैच फ्रॉम मोह माया। वाई? Because my Ketu is sitting in a space that actually detaches me from family, friends, people around me, right? It teaches me that I don't need to rely on others' emotions to be okay. I have my own emotions and I need to listen to my own emotions as well, rather than filling others' cup. मैं अपना कप खाली करके भी आपको पोर करे जाऊं तो वो नहीं हो पाता, है ना। तो केतु मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए आया है कि आपको ये चीज़ सीखना है, आपको हर एक के इमोशंस को एब्जॉर्ब करके परेशान नहीं होना है। दूसरों के इमोशंस उनके हैं, वो मेरे नहीं हैं। ये चीज़ मुझे समझने के लिए वो समझाने आया है, इसीलिए मेरी दशा मुझे ये कहती है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ पॉइंटर्स और हैं जो मैं रीड करूँगी। मेरे पास एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें मैंने R&D किया था, तो जस्ट बेयर विद मी फॉर दैट। So the points goes like starts like so as I said earlier, whichever the planet is synced with Ketu, results will start being visible in that particular space, situation, moment, or moment of life, right? It is true that you do lose some people so close to you whom you love or depend on, uh, and that pain actually teaches you the circle of life that people go, लाइक बेसिकली ये डिफरेंस क्या है कि ये डेथ और बर्थ का है, नॉट नेसेसरी दैट समवन इज डाइंग, बट लाइक अ फैक्ट दैट you will cut some people off, you might love them too much, but yes, in the beginning it will hurt a lot, but you will not keep holding them back to them, right? You will let them go, ठीक है। So that pain teaches you the reality of life and its cycle, which actually fades, and the pain that comes with it is generally faded within some time, right? First and foremost requirement to handle it is to be brave. So आपको डरना नहीं है कि हाय मेरा ये दूर हो रहा है, हाय मेरा ये ख़त्म हो रहा है, हाय मेरा ये जा रहा है ना। यू आर सपोज टू बी ब्रेव, ठीक है। अगर ये हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर इसके पीछे कुछ ना कुछ लर्निंग होगी, या फिर इसने मेरे को नहीं सर्व करना होगा मेरी लाइफ में आगे चल के, इस कनेक्शन में, ठीक है। सो बी ब्रेव, आपको डरना नहीं है उस चीज़ से। ये चीज़ मैं खुद को बोल रही हूँ एक्चुअली, ये शायद ही कोई रिलेट कर पा रहा हो, तो अगर कोई रिलेट कर रहा है वेरी वेल, बट फॉर माई सेल्फ आई नीड टू बी ब्रेव। आई डोंट हैव टू होल्ड एवरी वन बैक टू मी कि नहीं आई वोंट लेट यू गो, नो, इफ यू वांट गो यू गो, आई वोंट स्टॉप यू। इट विल हर्ट, येस, बट आई विल एक्सेप्ट दैट हर्ट एंड आई विल मूव ऑन। सो दैट्स व्हाट दिस सेंटेंस इज सेइंग, right? I have another pointer that says, like, it's basically a topic which I heard in a video. So does Ketu gives any foundation to your future materialistic goal? So basically ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि do you really think कि एक बार ये जब महादशा केतु की ख़त्म हो जाती है, वो आपके फ्यूचर में किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करता है? तो इसका जवाब है हाँ। जैसा हमने पीछे बात करी कि केतु आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, और आपका ज्ञान आपके साथ मृत्यु को, अगर आप मृत्यु के मुंह में जाते हो तो ज्ञान आपका आपके साथ जाता है, आपका ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता। उस ज्ञान के बेस पे अगर आप खड़े होते हो करियर में अपने, तो अल्टीमेटली आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा करे। लेकिन उससे पहले आपको सीखना, काटना और छोड़ना सीखना ज़रूरी है। सो बेसिकली इसमें जो मैंने वीडियो में देखा था, जनरली ये होता है, मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर एज ऑफ नाउ, बट हाँ, केतु के बाद वीनस की दशा आती है। तो वीनस रिप्रेजेंट्स लग्जरी इन योर लाइफ, राइट? सो वीनस, शुक्र, इन हिंदी द नेम है शुक्र। शुक्र रिप्रेजेंट्स लग्जरीज इन योर लाइफ। सो अल्टीमेटली क्या है कि केतु के बाद हमेशा वीनस की दशा ही आती है। शुक्र का इम्पोर्टेंस जो है
वो जो आपको लगता है ना कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है, रुक गया है, केतु के टाइम पीरियड में वीनस जो है उसको एक मोशन दे देता है, इट स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक आप रुके हुए कमरे में बंद हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, 7 साल की आप पढ़ाई कर रहे हो, और वो पढ़ाई का फल आपको कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब शुक्र की दशा जो है आपकी शुरू होगी, जिसमें जो आपको लग रहा था कि सब कुछ रुक चुका है वो चलने लग जाएगा, राइट? सो ये क्या करेगा कि आपको जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी या स्टक सिचुएशन है उसमें से निकालना शुरू कर देगा। आपका एटीट्यूड और ओपिनियंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, और यही केतु आपको सिखाने के लिए आता है। सो this is something that I heard in a video and actually did some research over it, right? I read it on, some platforms. I actually went into depths of it because this is something I'm about to explore, experience, एंड आई रियली वांट पीपल जिनका कुछ अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करो मेरे साथ वो चीज़ आके, ताकि मैं भी आप लोग के एक्सपीरियंस से सीख सकूँ। मैं यहाँ किसी को सिखाने के लिए नहीं आ रही हूँ, लेकिन जो मैं जान रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं उसके बारे में बात करने के लिए आ रही हूँ, राइट? अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ये चीज़ मैंने पीछे भी बोली थी, अगर ऐसी कोई स्टोरीज हैं कि अगर आप मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हो, या पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं तो एक समराइज करके एक बता दो कि हाँ इसकी लाइफ में ऐसा हुआ, देन उसने ये किया, हाँ, और उसके बाद उसके साथ ये हुआ, मेरे को ये छोटा छोटा अगर आप समअप्स देना चाहो तो आई एम, यू आर मोर देन वेलकम, आई एम मोर देन हैप्पी टू रीड इट, बिकॉज मुझे भी सीखना है। आप लोग मेरे साथ बढ़ो, मैं आप लोग के साथ बढ़ूँ, और ऐसे ही एक कम्युनिटी क्रिएट की जा सकती है जहाँ पे आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मोटा मोटा जो था वो यही था। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई नो, बट हाँ, दिस इज़ वॉट इट इज़। बट अगेन, येस, इफ़ यू हैव एनी स्टोरीज, please 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 put them into comments, and we can actually have a conversation about it. And since I'm a very small page right now, very small channel, it's very easy for me to reach out to people, and for people to reach out to me कि हाँ भाई I had the similar experience and maybe you can learn from this, or maybe you can give me guidance or I can give you guidance, right? So we can create a community like that. बाकी आज के लिए बस इतना ही। एक लास्ट की लाइन मैंने और सुनी थी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। केतु क्या है, उस परिवर्तन के लिए आपकी लाइफ में आता है, और वही आपकी प्रकृति है, वही एक नियम है प्रकृति का कि वो चलते रहता है, रुकता कुछ भी नहीं है। आप उसमें कितना उसके साथ ढल के चल सकते हो, कितना उससे लड़ के चढ़ सकते हो, वो आपके हाथ में। मेरे हिसाब से जिस नदी में आप बह रहे हो उसके बहाव के साथ जाओगे तो लाइफ आसान रहती है, अगर बहाव के साथ नहीं जाते तो स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप स्विम भी कर रहे हो तो अगेंस्ट द करंट अगर आप स्विम करोगे तो यू विल बी टायर्ड एज हेल। सो या, दैट्स अबाउट इट फॉर द वीडियो। वील सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय।